डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर ऑफ गैस स्टेट। आज का जो लेक्चर है दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मींस हम गैस को कन्वर्ट करेंगे इनटू लिक्विड। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड लिक्विड और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। अगर आप देखेंगे इन द गैस स्टेट, जो वहां पे एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है दैट इज मोर एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड स्टेट। दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, जो गैसेस होते हैं, गैसेस इन गैसेस द पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू इन द लिक्विड स्टेट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से in the liquid state gases molecules are more close as compared to in the gaseous state. This is the point number second. Now जब हम gases को liquefy करेंगे, either we will decrease their energy or we will bring them close to one another. ये हम कैसे करेंगे? So we can liquefy gases. जो gases हैं, gases को liquefy कर सकते हैं. Gases can be liquefied. Gases को आप liquefy कर सकते हैं. Gases can be liquefied by डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग प्रेशर। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर, और बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ, और by the combined effect of both। या हम gases can be liquefied by decreasing temperature, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और by the combined effect of both। this is how gases can be liquefied। now इसके बाद हम पढ़ेंगे जूल्स-थॉम्सन इफेक्ट। जूल्स-थॉम्सन इफेक्ट, according to Joule-Thomson effect, when a gas at high pressure is allowed to expand into the region of low pressure, Joule-Thomson effect, Joule-Thomson effect, Joule-Thomson effect. When a gas at high pressure is, when a gas at high pressure, when a gas at high pressure is allowed, को हम अलाउ करेंगे टू एक्सपेंड इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। व्हेन अ गैस एट हाई प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपेंड इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर थ्रू अ होल। व्हेन अ गैस एट हाई प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपेंड इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर थ्रू अ होल, इट इज accompanied by heating or cooling. Heating or cooling. When a gas at high pressure is allowed to expand into the region of low pressure. When a gas at high pressure is allowed to expand, there is adiabatically. Adiabatically means heat is neither allowed to leave the system nor it is allowed to enter the system. That is the adiabatic condition. When a gas at high pressure is allowed to expand adiabatically into the region of low pressure, it is accompanied through a hole. It is accompanied by heating or cooling. That means जो ये gas है, it shows heating effect or it shows cooling effect. Another point, the temperature above which जो गैस है, it shows the temperature above which gas shows heating effect, and below which it shows cooling effect. It shows cooling effect is termed as inversion temperature. This is the definition of inversion temperature. The temperature above which gas shows heating effect and below which gas shows cooling effect, it is termed as inversion temperature. जो इक्वेशन है फॉर इन्वर्जन टेम्परेचर दैट इज 2a by RB।
जो A and B है, these are the constants, van der Waals constants, or is the gas constant. So Joule Thomson effect की जो इसका जो स्टेटमेंट है, that is when a gas at high pressure is allowed to expand adiabatically into a region of low pressure through a hole, it is accompanied by heating or cooling. Now the temperature above which gas shows heating effect and below which gas shows cooling effect. इस टेम्परेचर को कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर. जो इक्वेशन है फॉर इन्वर्जन टेम्परेचर, दैट इज Ti इज इक्वल टू A बाई Ti इज इक्वल टू 2A बाई RB. इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, Ti इज इक्वल टू 2A बाई RB. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉम दिस थॉमसन एंड्रू आइसोथर्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. ये एक आइसोथर्म है, दैट मीन्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे. दिस इज एट 50 डिग्री, this is at 31.1 degree, this is at 30.98 degree, this at 21.5 and similarly this at 13.5. ये एक isotherm है, this is another isotherm, this is another isotherm, this is another isotherm. That means different experiments के लिए हम temperature constant रखेंगे, thus it is isotherm, और the graph is between pressure and volume. अगर आपको याद होगा Boyle's law, according to Boyle's law, जब हम graph draw करेंगे between pressure and volume at a constant temperature, the graph is like this. This is the carbon dioxide. अगर आप देखेंगे at 50 degree centigrade, the graph is just like the graph for ideal gas. Ideal gas के लिए जो graph है, that is like this. The graph for carbon dioxide is similar to for the ideal gas at 50 degree. Now जब हम temperature को decrease करेंगे, this graph shows deviation from this ideal graph. जो ideal gases के लिए graph है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, द ग्राफ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन द ग्राफ फॉर आइडियल गैस. नाउ अगर आप दिस एट 30.98 डिग्री यहां पे देखेंगे, अगर आप यहां पे देखेंगे एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो गैस है, दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट जो प्रेशर है दैट इज 73 एटमॉस्फेयर. यहां पे जो लिक्विड है, लिक्विड स्टार्ट अपियरिंग. दैट मीन जो गैस है, यहां पे जो गैस है एट दिस टेम्परेचर 30.98 एंड एट दिस पॉइंट, दैट मीन्स एट दिस प्रेशर एंड एट दिस वॉल्यूम, जो गैस है इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. दैट मीन्स यहां पे जो लिक्विड स्टेट है इट स्टार्ट्स अपियरिंग. अगर आप देखेंगे दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, अगर आप इससे ज्यादा टेम्परेचर लेंगे देन गैस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. Only this is the highest temperature at which gas can be converted into the liquid, or at which the liquid state appears. This temperature, the highest temperature at which liquid state appears, this is termed as critical temperature. This is termed as a critical temperature for a gas. अगर आप देखेंगे above this temperature हम इस गैस को liquefy नहीं कर सकते हैं. Above this temperature the gas cannot be liquefied. It is the highest temperature at which gas can be. This is the highest temperature at which gas can be liquefied. Above this temperature, gas cannot be liquefied. ये जो temperature है at which liquid state appears, this is termed as the highest temperature at which liquid state appears. This is termed as critical temperature. अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी liquid state appear होती है, यहाँ पे भी liquid state appear होती है. But this is the highest temperature at which liquid state appears. Because अगर आप इससे ज्यादा temperature लेंगे then liquid state does not exist. That means this is the highest temperature at which liquid state appears. The temperature or highest temperature at which liquid state appears, that is termed as critical temperature. Now जो critical temperature है, इस पे एक particular pressure होगा, pressure of a gas. The pressure of a gas at a critical temperature, that is termed as critical pressure. Now another point, volume occupied by 1 mole of a gas at a critical pressure, that is termed as critical volume. अगर आप further temperature को decrease करेंगे then gas is converted into the liquid at a low pressure. यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे convert होगा in the liquid state, but अगर आप इस lower temperature पे देखेंगे then it is converted into liquid at this temperature. Similarly यहाँ पे ये इस point पे liquid state appear होगी at this point. That means ये जो टेम्परेचर है, दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट्स.
दिस टेम्परेचर इज टर्म्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. सो अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. द टेम्परेचर, the highest temperature at which liquid state appears. The highest temperature at which liquid state is observed. जहां पे liquid state ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट अपीयर्स इज टर्म्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर. अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसके लिए इक्वेशन है TC इज इक्वल टू 8a/27 RB. दिस इज द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर. TC इज इक्वल टू 8a/27 RB. जो A है दिस इज द कांस्टेंट एंड इज टर्म्ड एज, इट इज द वंडर वाल कांस्टेंट. B जो है इट इज ऑल्सो द वंडर वाल कांस्टेंट. R इज कांस्टेंट. अगर आप देखेंगे जिस गैस का A ज्यादा होगा इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा. सो मोर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इज द वैल्यू ऑफ A, और मोर इज द वैल्यू ऑफ A, मोर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर. अगर हम एक डिफरेंट गैसेस है, फॉर डिफरेंट गैसेस, सपोज वी हैव 3 गैसेस. एक के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है T1, दूसरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है T2. अगर आप इन दोनों को लिक्विफाई करेंगे, जिसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा इसके लिए जो A है ये ज्यादा होगा. A ज्यादा होने का मतलब इस गैस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं. thus यहां पे हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मोर इज TC, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इजीली द गैस इज लिक्विफाइड. More easily gas is liquefied. This is important point. More is the critical temperature, more easily the gas is liquefied. Now अब हम लिखेंगे the equation for critical pressure. यहां पे हम critical temperature के लिए equation रखेंगे 8a/27 RB. ये पॉइंट है, मोर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इजीली द गैस इज लिक्विफाइड. इसको आप इस ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज हमारे पास जो गैस है एक का क्रिटिकल टेम्परेचर है. सपोज जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर की, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. सपोज एक का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31 डिग्री, दूसरे का है 21. 31 इज मोर. जब आप गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, फर्स्ट पहले आएगा 31, जब आप डिक्रीज करेंगे गैस के टेम्परेचर को फिर आएगा 21.5. दैट मीन्स ये गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, पहले ये लिक्विफाई होगा, इसके बाद ये वाला गैस लिक्विफाई होगा. बिकॉज जब आप डिक्रीज करेंगे पहले ये हाईएस्ट वैल्यू आएगा, इसके बाद लोअर वैल्यू आएगा. दैट मीन्स मोर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इजीली द गैस इज लिक्विफाइड. नाउ अनदर पॉइंट इज क्रिटिकल प्रेशर. Critical pressure of gas at critical temperature is called critical volume. Is called critical pressure. Critical pressure. यहां पे जो एग्जांपल है, the equation for this is PC is equal to A/27B square. This is the equation for critical pressure. Now जो यहाँ पे critical temperature और critical pressure है for carbon dioxide, that is 30.98. It is its critical temperature. जो इसका critical pressure है that is 73 atmospheres. Now at critical temperature and critical pressure, 1 mole of a gas will occupy a particular volume. This volume of a gas at critical pressure and critical temperature is termed as critical volume, represented by Vc. So इसके बाद हम लिखेंगे the definition of critical volume. पहले आप ये लिखेंगे the highest temperature at which liquid state is observed is termed as a critical temperature. Critical temperature की आप और एक definition लिख सकते हैं, the temperature above which gas cannot be liquefied. Because यहां से ऊपर अगर आप देखेंगे इस गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं.
Thus, another definition is the temperature above which gas cannot be liquefied is termed as a critical temperature. फिर जो critical pressure, it is simply the pressure of a gas at a critical temperature. इसको हम कहते हैं critical pressure. अब जो आखिरी definition, another definition जो है that is critical volume. Critical volume. What is actually the critical volume? It is the volume of gas at critical temperature and pressure. Critical temperature and pressure, इसको हम कहेंगे critical volume of a gas. जो VC के लिए जो definition है, equation है, that is 3 times B. B जो है, it is excluded volume or co-volume. It is excluded volume or co-volume. This is the critical temperature, critical pressure and critical volume. Now another one is the अगर आपको याद होगा, दिस क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए जो इक्वेशन है, दिस इज लाइक दिस. क्रिटिकल प्रेशर के लिए जो इक्वेशन है, सॉरी, पीसी दैट इज A/27B², और क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए जो इक्वेशन है दैट इज 3B. दीज आर द डिफरेंट इक्वेशंस. अगर आपको याद होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z दैट इज इक्वल टू PV/RT. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम नॉर्मल प्रेशर एंड वॉल्यूम लेते हैं. अगर आप प्रेशर के बदले क्रिटिकल प्रेशर लेंगे, वॉल्यूम के बदले क्रिटिकल वॉल्यूम लेंगे, टेम्परेचर के बदले क्रिटिकल वॉल्यूम लेंगे, देन जो एक Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इट बिकम्स क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाई ZC. दैट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर. पीसी के लिए जो इक्वेशन है, क्रिटिकल प्रेशर दैट इज A/27B². क्रिटिकल वॉल्यूम के लिए जो इक्वेशन है दैट इज 3 times B. और जो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए जो इक्वेशन है, R इंटू TC दैट इज 8A/27RB. This is the equation. This R will go with this. ये जो B है, it will go with this. This B will go with this. A will go with this. यहां पे जो फाइनल इक्वेशन है 27 will go with 27. यहां पे जो फाइनल इक्वेशन है that is 3/8. That is equal to 3/8. That means ZC जो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज इक्वल टू 3/8. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल बी 30/8. 30/8. 8 1s are 8. 8 4s are 32. 8 3s are 24. 6 60. It will become 8 8s are 64. 8 7s are. So 0.37 इसका वैल्यू आएगा. You can write it as 0.37. That is also equal to 0.37. This is the equation for critical compressibility factor. What critical compressibility factor actually is? It is the critical compressibility factor is. It is simply a compressibility factor. सिर्फ आपने यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के बदले क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर लेते हैं. यहाँ पे सिंपली जो वहां पे इक्वेशन आएगी, दिस इज द क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 3/8, that is equal to 0.37. This is the equation for critical compressibility factor. Another point is the boiler's temperature or boiler's point. Boiler's temperature or boiler's point. It is the temperature at which real gas behaves like ideal gas over the appreciable range of pressure. Temperature at which real gas behaves like ideal gas over appreciable range of pressure. Real gas behaves like ideal gas over appreciable range of pressure. This is the equation for real gas behaves like ideal gas over the appreciable range of pressure. जो इसके लिए जो इक्वेशन है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलर्स पॉइंट A/RB.
This is the equation for Boyle's temperature. A by RB. A and B are the van der Waals constants. These are the different equations. अब हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे. That is critical temperature, critical pressure. This is the equation for inversion temperature. This is the equation for critical temperature. जो final है, this is the equation for Boyle's temperature. TB. That is equal to A by RB. These are the three temperatures. Ti is the inversion temperature, the temperature above which gas shows heating effect and below which gas shows cooling effect. ये जो है Tc, it is the critical temperature, highest temperature at which the liquid state exists, highest temperature. Tb is the boiling point, it is the temperature at which real gas behaves ideally or like an ideal gas over the appreciable range of temperature. Pressure. Ti is the first equation. TB is the another equation and TC is the another equation. Ti inversion temperature के लिए जो equation है, that is 2A by RB. जो boiler's point के लिए है, that is A by RB. जो critical temperature के लिए, that is 8A by 27B, 27 RB. अगर आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे, यहां पे है A by RB, यहां पे है A by RB, यहां पे है A by RB. Sorry, it is 27 RB. This is common. यहां पे रहेगा 2, यहां पे रहेगा 1, यहां पे 8 by 27. अगर 8 by 27 आप करेंगे, it will be less than 1. That means जो इनका वैल्यू होगा TI का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा बिकॉज यहां से 2 है. इसके बाद इसका वैल्यू ज्यादा, सबसे कम इसका वैल्यू होगा बिकॉज 8 by 27 will be less than 1. So इनका जो ऑर्डर है, that is like this. This is point number 1. Now आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं. जो Ti है, critical inversion temperature is to boiling temperature is to critical temperature, that will be equal to 2A by RB is to A by RB is to 8A by 27 RB. RB जो है, it is common in all the three. So आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. यहां पे जो रेशियो बचेगा, that will be equal to 2:1 is to 8 by 27. This is the ratio of Ti by Tb is to Tc. This is the ratio of these three. अगर आप इनका ऑर्डर देखेंगे, then inversion temperature is the highest, followed by boiler's temperature and followed by critical temperature. ये जो पॉइंट है, this is the ratio of inversion temperature, boiler's temperature and critical temperature. Now another point is the critical point. Another point. Critical point. Critical point. Critical point. Critical point. जो critical point है, it is the critical point. It is the state of a substance. It is the state of substance at critical temperature and critical pressure. This is the first point. Your critical point है, it is the state of a substance at critical point and critical temperature. इसके कुछ features होंगे. Features at critical point. First point is at critical point. जो density of solid होता है, density of gas is equal to the density of liquid. इस पॉइंट पे जो density of for any substance at this point, that is critical point, density of gaseous state is equal to the density of liquid state. First point. Second point, the separation between liquid and gaseous state disappears. Separation between or the surface of separation between liquid and gaseous state disappears. This is the second point. Third point,
third point, gas is below TC, that is critical temperature, are called vapors. Gases below critical temperature are called vapors. Gases below their critical temperature are called vapors. Fourth point is the fluids above critical temperature. Fluids above critical temperature are called supercritical fluids. अगर आप इस डोम की बात करेंगे, जो ये डोम है, इसमें जो लिक्विड और गैस स्टेट है दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम. The first is the critical point. It is the state of a substance at critical temperature and critical pressure. This state, यहाँ पे ये होगा critical state of this carbon dioxide. अगर आप इस पॉइंट पे बात करेंगे, जो density of gas होगा that will be equal to the density of liquid. That means at critical point, density of a gas is equal to the density of a liquid for any substance. Second, जो surface of separation होती है between liquid state and the gas state, इस पॉइंट पे वो डिसअपियर हो जाती है. पॉइंट नंबर थर्ड, गैसेस बेलो क्रिटिकल टेम्परेचर, इनको कहते हैं वेपर्स. पॉइंट नंबर फोर्थ इज द फ्लूइड्स अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, इनको कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स. दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज एंड ऑफ गैसेस स्टेट. दिस इज द एंड ऑफ गैसेस स्टेट. अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट. गैस स्टेट हमने स्टार्ट किया था विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गैस. फिर वहां पे हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. फिर हमने स्टार्ट किया था विद लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ. जो हमारे पास डिफरेंट लॉज है, वहां पे हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, जो ये पैरामीटर्स पढ़े थे. फॉर एनी लॉ हम दो को कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन एवरी गैस लॉ. फिर हम इन तीनों में से एक को कांस्टेंट रखते हैं, एक को वेरी करते हैं, देन वी विल सी इट्स इफेक्ट ऑन द अनदर वन और थर्ड वन. फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉयल्स लॉ की बात करेंगे, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. हम प्रेशर को चेंज करेंगे, देन वी विल सी व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम. दैट विल बी द बॉयल्स लॉ. इसके बाद आएगा चार्ल्स लॉ. वहां पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, देन वी विल सी द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम. इसके बाद है Gay-Lussac's लॉ, थर्ड वन. वहां पे हम क्या करते हैं, वी विल सी दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर. दिस इज चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर. Gay-Lussac's लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देख सकते हैं. फिर हम इन तीनों को कंबाइन करके एक और लॉ बनाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज टर्म्ड आइडियल गैस इक्वेशन. जो आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. हम फिर इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू डीआरटी बाय एम. फिर हम डिफरेंट गैसेस को यहां से कंपेयर कर सकते हैं विद दिस. अगर आपके पास एक ही गैस है, सपोज वी हैव अ गैस विद प्रेशर P1 एट टेम्परेचर T1, इसकी जो डेंसिटी होगी दैट विल बी G1. अब हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं, ऑब्वियसली डेंसिटी विल चेंज. अगर आपको फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर पता है, यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी. जो वहां पे इक्वेशन बनेगी, दैट इज P1 by P2, दैट विल बी इक्वल टू D1 T1 डिवाइड बाई D2 T2. दिस इज द इक्वेशन. बिकॉज जो M है मोलर मास, दैट विल बी सेम फॉर द गैस. वो चेंज नहीं होगा बाई चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन. R भी चेंज नहीं होगा. यहां पे जो R है, दिस इज गैस कांस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट R इज दैट जो R है, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस. इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. फिर हमने पढ़ा था दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो पोस्टुलेट्स को याद रखना वो बहुत जरूरी है. दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विद द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द होल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल. यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अगर आपके पास 3 गैसेस हैं, इफ दे आर प्रेजेंट एट द सेम टेम्परेचर, इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी सेम. दैट मीन्स डिफरेंट गैसेस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर. टेम्परेचर सेम होगा फॉर डिफरेंट गैसेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम. फिर इसके बाद हमने पढ़ा मॉडिफिकेशन और
जो हम आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, एक्चुअली जो रियल गैस है दे आर नॉट satisfying this equation under all conditions of temperature and pressure. What is the reason behind this? जो हमने अभी दो postulates पढ़े, that is the force between the gas molecule is negligible and volume occupied by the gas molecule is negligible. Actually हम गैस को liquefy कर सकते हैं, that is there is some force of attraction. फिर हमने एक ग्राफ पढ़ा था between real gas and ideal gas. The gases वो जो graphs है they are not coinciding. If they are not coinciding, that means there is some volume occupied by the gas molecule. फिर हमने मॉडिफाई किया आइडियल गैस इक्वेशन को, वहां से आई थी एक और इक्वेशन दैट इज टर्म्ड एज वन डर वाल्स गैस इक्वेशन, P plus A n square by V square, P plus A n square by V square, V minus B और V minus NB is equal to nRT. यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दिस इज द करेक्शन टर्म. ये जो करेक्शन टर्म है इट इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन. A इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. जिस गैस के लिए भी A ज्यादा होगा वो गैस हम सबसे इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं. जो B है इट इज टर्म्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को-वॉल्यूम, इट इज 3 टाइम्स B. ये जो B है, सॉरी इट इज B जो होगा इट इज 4 टाइम्स V. ये V और ये V यहां से डिफरेंस है. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, ओवरऑल गैस. ये जो V है स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल. दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. फिर हमने Z पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z इज इक्वल टू PV बाई RT जब मोलर वॉल्यूम होगा या वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. फिर हमने यहां से Z जो है आइडियल के लिए Z होगा 1, नॉन आइडियल के लिए Z होगा नॉट लेस देन 1. इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1. अगर Z है लेस देन 1 इसका मतलब है गैस शोज नेगेटिव डिविएशन. गैस शोज नेगेटिव डिविएशन मींस इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी लेस देन आइडियल गैस. इट सिंपली मींस इस गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं मोर देन एक्सपेक्टेड. हम एक गैस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं मोर देन एक्सपेक्टेड? जब वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे. सो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे. Z ग्रेटर देन 1 मींस पॉजिटिव डिविएशन. गैस कब दिखाएगा पॉजिटिव डिविएशन? व्हेन द रिपल्सिव फोर्स आर डोमिनेट, बिकॉज दिस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड. वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे. फिर हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया था फॉर दिस Z वर्सेस P, उसको हमने एक्सप्लेन किया था बाय यूजिंग वन डर वाल्स गैस इक्वेशन. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Z लेस देन 1 मींस गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड. अगर आपको याद होगा मोलर वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस दैट इज 22.4 लीटर्स एट STP. अगर इसका वॉल्यूम कम होगा बिकॉज इट इज मोर कंप्रेसिबल, सो जो मोलर वॉल्यूम होगा दैट विल बी लेस देन 22.4 लीटर्स. इसका जो मोलर वॉल्यूम होगा दैट विल बी मोर देन 22.4 लीटर्स. दिस इज ऑल अबाउट दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इट इज वेरिएशन विद द प्रेशर, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन. फिर आज हमने पढ़ा दिस लिक्विफिकेशन ऑफ. हम गैसेस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, या हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, या हम दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके